عمران خان اقتدار کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے امداد نہ ملے۔ وہ 4 سالہ دور حکومت میں عمران خان مہنگائی اور کرپشن چھوڑ کر گئے۔ آج قوم کو پہلے سے زیادہ اتحاد اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نیوز کانفرنس۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 12,000 کلومیٹر طویل سڑکوں اور 390 پلوں کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے ہیلی کاپٹرز نے 3 پروازیں کیں۔ سیلاب میں پھنسے ہوئے 31 افراد کو نکالا گیا۔ متاثرین کو 2 ٹن سے زیادہ خوراک پہنچائی گئی۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر۔ عالمی برادری کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی فراہمی جاری۔ اب تک مختلف ملکوں اور تنظیموں کی جانب سے 110 طیارے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ملائیشیا کی بدمت تنظیم کی جانب سے پہلی امدادی پرواز کی اسلام آباد آمد۔ امریکہ سے امدادی سامان کی تیسری کھیپ کراچی پہنچ گئی۔ امریکہ نے اب تک 21 پروازوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیجی ہے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کا دورہ سوات۔ مالاکنڈ، بنیر، شانگلہ اور مردان کے قبائلی عمائدین اور مؤسسین سے ملاقات۔ کور کمانڈر کی دہشت گردی کے خلاف جنگ بالخصوص سوات آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی بھرپور اور غیر متزلزل حمایت پر مقامی عمائدین کی تعریف۔ ISPR۔ سربراہ پاک فضائیہ کا اسکردو ایئر بیس کا معائنہ۔ فضائیہ کی تنصیبات، نئے تعمیر شدہ بنیادی ڈھانچے اور آلات کا جائزہ۔ فضائیہ کی جانب سے بنیادی ڈھانچے اور عسکری صلاحیتوں میں اضافہ خطے کے پیچیدہ آپریشنل ماحول میں عسکری حکمت عملی میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظہیر احمد بابر سدھو۔ ملک میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ کراچی میں 1600 سے زائد کیسز رپورٹ۔ لاہور میں ڈینگی کے 158 اور اسلام آباد میں 113 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سندھ حکومت کا ڈینگی لاروا تلف کرنے کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ایک شخص جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 104 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 0.63% رہی۔ 91 افراد کی حالت اب بھی تشویشناک۔ پیڑ سے 5 سے 11 سال کے بچوں میں کرونا ویکسین مہم کا آغاز۔ قومی ادارہ صحت۔ ملک بھر میں آج عالمی یوم تحفظ مریضاں منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال کو یقینی بنانا ہے۔ WHO نے 2020 سے 2030 تک کو مریضوں کی حفاظت کی دہائی قرار دے رکھا ہے۔ ملک بھر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے شہداء کا چہلم انتہائی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں علم اور تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ جلوس کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کینیڈا میں خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم کل ٹورنٹو میں ہوگا۔ ہزاروں سکھ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ریفرینڈم سے پہلے ٹورنٹو میں کشیدگی۔ ریفرینڈم رکوانے کے لیے بھارتی حکومت متحرک۔ اس سے پہلے اٹلی، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں بھی خالستان کی آزادی کے لیے ریفرینڈم ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات۔ ترقی پذیر ممالک غذائی قلت سے سب سے زیادہ متاثر۔ عوام کو شدید قحط سالی کا سامنا۔ شدید بھوک کا سامنا کرنے والے افراد کی تعداد دگنے سے بھی زیادہ۔ غیر سرکاری برطانوی تنظیم آکسفیم کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ پاکستان کے شمال میں موجود 5000 گلیشیئرز کے نقشے تیار کرائے گا۔ مقصد بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور اس کے نتیجے میں گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار معلوم کرنا اور مستقبل میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے بچنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ UNDP۔
آن جہانی ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ ویسٹ منسٹر ہال میں ملکہ کے تابوت کے آخری دیدار کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ کنگ چارلس اور ملکہ کمیلا کی ویلز کے لنڈاف کیتھیڈرل میں ہونے والی دعائیہ تقریب میں شرکت۔ آخری رسومات سے قبل رائل نیوی کے اہلکاروں کی ریہرسل جاری۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا پہلا پریکٹس سیشن۔ قومی ٹیم آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ 7 میچز کی T20 سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا۔ سیریز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ ملتان میں نیشنل T20 کپ آج بھی 2 میچز۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ٹیمز دن 3 بجے مد مقابل ہوں گی۔ ناردرن اور صدرن پنجاب شام 7:30 بجے آمنے سامنے۔ کل کھیلے گئے میچز میں سینٹرل پنجاب نے ناردرن اور صدرن پنجاب نے خیبر پختونخوا کو ہرا دیا۔ ایونٹ PTV سپورٹس HD پر دیکھیے براہ راست۔ اور یورپین فٹ بال لیگز کے دلچسپ مقابلے جاری۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آسٹن ویلا نے ساؤتھہمپٹن اور فلہام نے نوٹنگھم فارسٹ کو ہرا دیا۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں قادس کی ریال ویلاڈول کو 1 گول سے شکست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دورہ ازبکستان میں مختلف سربراہان مملکت کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم کی سب سے اہم ملاقات چین کے صدر سے ہوئی۔ روس اور ترکیہ کے سربراہوں سے بھی مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ سیلاب کی آفت میں تمام سربراہان مملکت نے وزیر اعظم کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نومبر کے پہلے ہفتے میں چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو دورے کی دعوت چین کے صدر شی جن پنگ نے دی ہے۔ روس کے صدر نے بھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو دورے کی دعوت دی ہے۔ تاریخ فائنل ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ شی نے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ نومبر کے پہلے ہفتے میں وزیر اعظم چین کا دورہ کریں گے۔ اسی طرح صدر پیوٹن نے بھی پرائم منسٹر کو بلایا ہے، تو اس دورے کے بعد جو ہے ان کی وہاں بھی جانے کی تاریخ جو ہے حتمی انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گی۔ عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے۔ یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو، الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال، تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں۔ برحال جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ جب اقتدار میں آئے تو حالات بہت ابتر تھے، جلد حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سی پیک کو محنت کے ساتھ شروع کریں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ آج قوم کو پہلے سے زیادہ اتحاد اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے 15 اور 16 ستمبر کے دوران ازبکستان کا دورہ کیا۔ SCO سربراہ کونسل تنظیم کا اعلیٰ سطح فورم ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ سربراہ اجلاس میں تمام رکن ممالک کے سربراہان ازبکستان کے صدر کی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں مبصر ممالک ایران، منگولیا اور بیلاروس کے سربراہان مملکت بھی شریک تھے۔ SCO سربراہ اجلاس میں سمرقند اعلامیے پر دستخط کیے گئے۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی، تحفظ خوراک، توانائی اور بین الاقوامی ترسیل نظام پر بھی مشترکہ اعلامیے پر دستخط ہوئے۔ SCO سربراہان نے ایکشن پلان 2023-27 کی بھی منظوری دی۔ ایکشن پلان میں بہتر ہمسائیگی، تعاون، رکن ممالک کے درمیان مواصلاتی روابط شامل ہیں۔ ایکشن پلان میں اقتصادی اور ٹرانسپورٹ راہداریاں، شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے خیر سگالی سفیر شامل ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें की, जिनमें रूसी और चीनी सदूर से बातचीत इंतहाई मुफीद रही। दोनों मुल्कों के सदूर ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को चीन और रूस के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने साइड लाइन मुलाकातों में क्या कामयाबियां समेटी, आपको आगाह करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान के लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस इवेंट पर पाकिस्तान के लिए इक्तसादी ताउन के मौके से भरपूर फायदा उठाया। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि आलमी इक्तसादी बहरान का तकाजा है कि बाहमी ताउन को फरोग दिया जाए। चीनी सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के आज़म का इजहार किया गया। रूस की तरफ से गैस की फराहमी की पेशकश पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के पेश नजर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान को रूसी गैस की फराहमी मुमकिन है क्योंकि इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। रूस से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने के हवाले से तुर्किया और पाकिस्तान में भी इत्तेफाक पाया गया। इजलास के मौके पर होने वाली साइड लाइन मुलाकातों में पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर हम आहंगी पाई गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को रूस और चीन के दौरे की दावत भी मिली। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंदूबीन को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात से आगाह किया और पाकिस्तान को आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली का सबसे बड़ा मुतासरा मुल्क करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की आफत में मदद देने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली के लिए ज़रूरियात से भी आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल फिर तब्दील कर दिया गया है। इजलास अब 22 सितंबर के बजाय 20 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली हासिल इख्तियारात के तहत की है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक सैलाब से 12,000 किलोमीटर तवील सड़कों और 390 पुलों को नुकसान पहुंचा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 3 परवाजें की, जिनमें सैलाब में फंसे हुए 31 अफराद को निकाला गया, जबकि सैलाब मुतासरीन को 2 टन से ज्यादा खुराक फराहम की गई। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अब तक 147 इमदादी कैंप्स और इमदादी सामान जमा करने के लिए 284 पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 8,000 टन से ज़्यादा सामान मुतासरीन सैलाब में तकसीम किया गया है। सैलाब के इलाकों में 300 से ज़्यादा तिब्बी कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें 1,26,000 मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम की गई। अब तक 9,000 टन खुराक, 1,500 टन ज़रूरी अशिया और दवाओं के 80 लाख से ज़्यादा पैकेट जमा हुए हैं, जिसमें से 8,900 टन खुराक तकरीबन तमाम अशिया ज़रूरिया और अद्वियात तकसीम की जा चुकी हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। सैलाब मुतासरा इलाकों में गिरने वाले बिजली के खंभे दोबारा नस्ब कर दिए गए हैं। खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दादू में 500 केवी का अहम ग्रिड स्टेशन है। दादू ग्रिड स्टेशन को सैलाब से खतरा था। हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए, जिससे ग्रिड स्टेशन सैलाब से महफूज रहा। हालिया बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान के 95 मकामात सैलाबी रैलों की जद में आकर बुरी तरह मुतासर हुए हैं। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर की तहसील अशकुमन में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की तहसील इश्कुमन का इलाका है और यहाँ की जो 3 अहम गांव हैं, जिनमें फैज़ाबाद है, जलालाबाद है और सेंट्रल कोट हैं, जो मुल्क भर में बादाम, अखरोट, सेब और खुबानी की पैदावार के हवाले से खसूसी अहमियत रखते हैं। हालिया सैलाब से ये इलाका बुरी तरह मुतासर हुआ है। अगर हम सिर्फ इस इलाके की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़ायद घर जो हैं वो डिमोलिश हुए हैं। 10 से 11,000 अफराद जो हैं वो बेघर हुए हैं। ओवरऑल अगर जीबी की बात करें तकरीबन 1.5 लाख के करीब अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं और मुतादिद यहाँ पर जो राब्ता सड़कें हैं वो टूटी हैं, पुल जो हैं
वो टूटे हैं। सस्पेंशन ब्रिजेस यहाँ पर जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, वो मुकम्मल तौर पे जो हैं वो डैमेज हुए हैं। इसके साथ साथ जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह जो है मुतासर हुआ है। आपको मेरे पीछे पानी की पाइपलाइन नज़र भी आ रही होगी। ये यहाँ पर एक माइक्रो जो है वो हाइड्रो पावर डैम ज़ेरे तामीर था और नियरिंग कंप्लीशन था। जल्द इसने जो है वो बिजली की पैदावार शुरू करनी थी। ये पीछे नाला जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो सैलाबी पानी आया और उसके साथ जो बड़े बड़े पत्थर, रेत और जो मिट्टी आई वो इस मिनी हाइड्रो पावर प्लांट को बहा कर ले गई है। और अब उसकी वजह से इश्कोमन का इलाका है, यहाँ पर इस वक्त जो बिजली सप्लाई भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। हुकूमत की इस वक्त तमाम तरजीहात हम देख रहे हैं वो जल्द से जल्द जो है वो रिकवरी के ऊपर है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो इस इलाके को जो है वो बहाल किया जा सके। जो मुतादिद तंजीमें हैं जिनमें आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क है, उनकी आका के नाम से आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट की जो है वो एक तंजीम है, वो भी यहाँ पर कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रही है। और मकसद यही है कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर जो है वो रिहेबिलिटेशन की जा सके, क्योंकि ये एक सख्त इलाका है और जल्द जो है वो यहाँ पर सर्दियाँ भी आ जाती हैं, बर्फ़बारी भी हो जाती है। -15 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर चला जाता है। शदीद सर्दी की वजह से इस इलाके में मुश्किलात बहुत बढ़ जाती हैं। तो पूरी कोशिश यही है कि सर्दी के आने से पहले इस इलाके में जल्द से जल्द जो है वो रिकवरी का अमल किया जाए। जी, हसन तारिक भट्ट रिपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन, आपको आगाह करें, सैलाबी पानी का समुंदर बुर्द होने का सिलसिला जारी है, जिससे दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। दरियाई सिंध में पानी की सतह कम होकर 3,51,000 क्यूसेक रह गई है। सैलाबी रेला समंदर में गिर रहा है, जिसकी वजह से पानी की सतह मुसलसल गिर रही है। पानी की सतह में कमी की वजह से तमाम हिफाजती बंदों को सैलाब से दरपेश खतरा टल गया है। सैलाबी पानी में कमी की वजह से दरियाई सिंध के अतराफ ज़ेरे आब शहरों और देहात में भी पानी उतर रहा है और बाज़ मकामात पर मुतासिरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं, सैलाब मुतासिरीन के लिए आलमी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासिरीन के लिए मलेशिया की जानिब से पहली इमदादी परवाज़ पहुँची है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मलेशिया के डिप्टी हेड ऑफ मिशन डेरी फैसल ने कहा है कि उन्होंने हुकाम के साथ इमदादी सामान वसूल किया। इमदादी सामान बुधमत तंजीम, फुगवांग शान, बुधा लाइट इंटरनेशनल एसोसिएशन और संचियो फाउंडेशन की जानिब से भेजी गई। इमदादी सामान में टेंट, खुश्क दूध, कंबल, पानी और कपड़े शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी की जानिब से इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। अब तक मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों की जानिब से 110 तैयारे पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। ओमान से इमदादी सामान लेकर परवाज़ नूर खान एयरबेस पहुंची। वज़ीर मुमलिकत तवानाई मोहम्मद हाशिम नौतज़ई और NDMA हुकाम ने सामान वसूल किया। तुर्किया से इमदादी ट्रेन मजीद 380 टन सामान लेकर सरहदी शहर ताफ्तान पहुंची, जहां ये सामान हिलाल अहमर पाकिस्तान के हवाले किया गया। तुर्किया की जानिब से ज़मीनी रास्ते से ये तीसरी इमदादी खेप है। ये इमदादी सामान बलूचिस्तान के मुतासिरा इलाकों में तकसीम किया जाएगा। अमरीका की जानिब से भी इमदादी सामान की तीसरी खेप कराची पहुंच गई है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमरीका ने अब तक 21 परवाज़ों के जरिए सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद भेजी है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने सवात का दौरा किया और मालाकंड, बुनेर, शांगला और मर्दान के कबायली अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। कोर कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, बिलखुसूस सवात ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मकामी अमायदीन की तारीफ की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर ने कहा कि सवात में दहशत गर्दों के खिलाफ तेज़ और बेमिसाल कामयाबियाँ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई कि लोग सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ऑपरेशंस की कामयाबी से तकमील और मामूल की वापसी के बाद सिविल इंतजामिया को पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि फ़ौज इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में न ले, ताकि मकामी आबादी की माशी सरगर्मियाँ मुतासर न हों। कबायली माहिदीन ने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज की मुकम्मल हिमायत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के शिमाल में मौजूद 5000 ग्लेशियर्स की मैपिंग कराएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के जरिए बढ़ते हुए दर्जा हरारत और इसके नतीजे में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार मालूम करके एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे मुस्तक़बिल में मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में होने वाली तबाही से बचाव मुमकिन हो सके और सैलाब जैसी आफतों के हवाले से पेशगी इंतबाह जारी किया जा सके। UNDP के मंसूबे के मुताबिक अगले 18 माह के दौरान 5000 ग्लेशियर्स की मैपिंग की जाएगी।
اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف موسم کی خرابی کے سبب میاں والی اور ٹانک نہ جا سکے۔ وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے میاں والی سے واپس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے سلسلے میں پہلے میاں والی اور پھر ٹانک میں تعمیر شدہ 100 گھروں کا افتتاح کرنا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف موسم کی خرابی کے سبب میاں والی اور ٹانک نہ جا سکے۔ ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے میاں والی سے واپس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کے سلسلے میں پہلے میاں والی اور پھر ٹانک میں تعمیر شدہ 100 گھروں کا افتتاح کرنا تھا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹانک کے گزشتہ دورے میں متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس راولپنڈی پر سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اس اجلاس میں ریسکیو اور ریلیف کے کاموں سے متعلق تازہ ترین معلومات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم ایئر بیس پر سیلاب سے متعلقہ اجلاس کے بعد لندن روانہ ہوں گے۔ تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف موسم کی خرابی کے سبب میاں والی اور ٹانک نہ جا سکے۔ وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے میاں والی سے واپس ہوا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے پاک فضائیہ کی تنصیبات، نئے تعمیر شدہ انفراسٹرکچر، آلات اور سپورٹ یونٹس کا آپریشنل جائزہ لینے کے لیے شمالی سیکٹر میں آپریشنل ایئر بیس کردو کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایئر چیف کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کی جانب سے انفراسٹرکچر اور عسکری صلاحیتوں میں اضافہ پاک فضائیہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو توسیع دینے اور خطے کے پیچیدہ آپریشنل ماحول میں عسکری حکمت عملی میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ مادر وطن کی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں، بارہمولہ اور دیگر اضلاع میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کے ایم ایس کے مطابق قابض انتظامیہ نے مذہبی رہنماؤں مولانا عبدالرشید داؤدی، مولانا مشتاق احمد ویری، عبدالمجید ڈار المدنی سمیت متعدد گرفتار افراد پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجی اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے لوگوں میں خوف پیدا کرنے اور انہیں اپنی منصفانہ جدوجہد سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کے لیے گرفتاریوں میں تیزی لانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اس طرح کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ قابض حکام نے سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک بار پھر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ میر وائز کو 5 اگست 2019 سے مسلسل غیر قانونی گھر میں نظر بند کر رکھا ہے، جبکہ بھارت حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیا تھا۔ جنیوا میں کشمیری نمائندوں الطاف حسین وانی، سید فیض نقشبندی، سردار امجد یوسف، شمیم شال اور سائرہ شاہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے جاری 51ویں اجلاس کے دوران عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کرے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ادارہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کی جان اور عزت کے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کے طریقہ کار کو برے کار لائے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے پاکستان میں اسپین کے سفیر ہوسے ایڈی اور اوری نے ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور ثقافتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسپین یورپین یونین میں GSP+ درجے کے معاملے میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اسپین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر ہسپانوی سفیر نے گورنر پنجاب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار ممالک کو اس موقع پر پاکستان کی خصوصی طور پر مدد کرنی چاہیے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی MNA سردار محمد خان لغاری کے گھر ان کے والد سابق ضلع ناظم ڈیرہ غازی خان سردار مقصود لغاری کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم کی روح کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سردار مقصود لغاری مرحوم سے عزت اور احترام کا رشتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان کی تعمیر و ترقی میں ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی ہدایت پر ڈریپ کو ملک بھر میں جعلی اور ان رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری اور ملک بھر سے جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریپ کے مطابق ملک کے بڑے شہروں میں کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈریپ کی ٹیم نے کراچی میں کارروائیاں کرتے ہوئے ان رجسٹرڈ ادویات کی پروڈکشن، خام مال پیکنگ میٹیریل اور تمام ادویات کو قبضے میں لے کر سیل کر دیا ہے۔
पुलिस ने मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीर सेहत ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जाली और अनरजिस्टर्ड अद्वियात के मकरूह धंधे में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क्वालिटी और मयारी अद्वियात की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। और नाज़रीन, कराची समेत सूबा सिंध में डेंगू और मलेरिया के केसेस में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत सिंध के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में कराची में डेंगू के 403 केसेस रिकॉर्ड किए गए। सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की में 116, ज़िला कुरंगी में 107, ज़िला वस्ती में 72 और ज़िला जनूबी में 61 केसेस रिपोर्ट हुए। हैदराबाद डिवीज़न में 16, लाड़काना डिवीज़न में 1, सखर डिवीज़न में 2 और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 48 घंटों में सूबे में 426 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर सितंबर के महीने में अब तक 2246 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू से अब तक कराची में 9 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। सूबे में मलेरिया के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। अब तक हैदराबाद डिवीज़न में 1172 केसेस, सखर डिवीज़न में 218 केसेस, लाड़काना डिवीज़न में 915, मीरपुर खास 586, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में 89, जबकि कराची में 31 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह मजमूई तौर पर सूबा सिंध में 3011 केसेस मलेरिया के रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक डेंगू पर काबू पाने के लिए सूबे भर में मौसर इंसदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से डेंगू के 188 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें रावलपिंडी से 80, लाहौर से 62 जबकि गुजरावाला से 14 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत की तरफ से सूबे भर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने और अफजाइश को रोकने के लिए मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा सेहत ने आवाम से कोरोना के साथ डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की अपील की है। कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 104 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.63% रही, तहाँ 91 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। इसके साथ हुकूमत 19 सितंबर से 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों में कोरोना वैक्सीन मुहिम का आगाज कर रही है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया से कोरोना का खात्मा नजर आ रहा है। WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वबा के इख्तिताम के हवाले से हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। अभी हम इख्तिताम तक तो नहीं पहुंचे, मगर आदाद व शुमार बताते हैं कि इस वबा का खात्मे का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अगर हमने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो वायरस की मज़ीद इक़साम से सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी हो सकती है। इदारे की जानिब से 6 पॉलिसी पेपर्स जारी करते हुए डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने कहा कि उनका मकसद ये है कि दुनिया भर की हुकूमतें अपनी पॉलिसियों का जायज़ा लेकर उन्हें मजबूत बना सकें। उन्होंने जोर दिया कि ज़्यादा खतरे से 2-4 इलाकों में 100% वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, किसी भी बीमारी में मुब्तला मरीज़ हस्पताल में दाखिल हो तो वो अपने मुआलिज के रहमो करम पर होता है। ऐसे में एक डॉक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो ज़रा सी भी गफलत न बरते। इसी सोच को बेदार करने के लिए आज आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा मनाया जा रहा है। तफसीर बताएंगी मरियम मलिक। मरीज को दौरान इलाज मुनासिब तवज्जो ना मिले, डॉक्टर्स की तरफ से गफलत बरती जाए तो वो मौत के मुंह भी चला जाता है। हर साल पूरी दुनिया में औसतन ऐसे 26 लाख वाकयात सामने आते हैं। उन्हीं की रोकथाम के लिए आज यौम तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा मनाया जा रहा है। WHO के पाकिस्तान में हेड ऑफ मिशन डॉक्टर पालिथा महिपाला ने इसी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में बताया कि दवाओं के गैर महफूज तरीका इस्तेमाल और गलतियाँ दुनिया में गफलत के बायस सामने आने वाली अमवात की एक बड़ी वजह है। We need to really focus on patient safety. This is an issue that we need to really focus and deliver patient safety and quality services at the healthcare institution. If we are running health services, we should have a safe care. It should be effective. It should be efficient, patient-centered, and it's distributed equitably. And it should be timely. कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल चौधरी के मुताबिक अक्सर साइड इफेक्ट्स दवाओं के गैर मखसूस होने की वजह से होते हैं, लेकिन नुकसानदेह असरात की एक बड़ी वजह गलत नुस्खे और एहतियात ना बरतना है। बहुत सारे मौक़ों में या तो प्रॉपर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं होती, मगर उससे भी कहीं ज़्यादा वो मिस डायग्नोस हो जाते हैं, उनकी तशख़ीस नहीं होती अमराज की,
उन्हें अद्वियात गलत दे दी जाती हैं। डायरेक्टर ड्रैप डॉक्टर उबैदुल्ला का कहना था कि वफाकी वजारत सेहत और सेहत के सूबाई महकमों के साथ मिलकर पाकिस्तान में दवाओं की हिफाजत और देखभाल के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में since 2018 we have established the system कि ये ADR monitoring, ADR reporting system in place हो। Now जो legislation है वो भी हो चुकी है। Now it is the time for the implementation। WHO ने 2020 से 2030 तक को मरीजों की हिफाजत की दहाई करार दे रखा है। हुकाम के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान में भी महकमा सेहत के साथ मिलकर मरीजों की दौरान इलाज हिफाजत यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। किसी की जान किसी की वजह से ना चली जाए, इसी सोच के तहत तहफ्फुज़ मरीज़ा मनाया जाता है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कनाडा के शहर टोरंटो में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम से कबल दुआया तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 50,000 से ज़्यादा सिखों ने शिरकत की। टोरंटो में भारत के ज़ेर इंतज़ाम पंजाब में सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कल होगा। तकरीब में शामिल शुरका ने पीले रंग के झंडे उठाए हुए थे और उन पर खालिस्तान के नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका ने खालिस्तान के क़याम तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। रेफरेंडम का एहतमाम तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में तमाम अरकान पर जोर देते हुए कहा है कि दुनिया एक नए हंगामा खेज दौर में दाखिल हो चुकी है। हमें वक्त के रुझान को समझना चाहिए, यकजहती और ताउन को बढ़ाना चाहिए और शंघाई ताउन तंजीम के साथ एक मुत्तहद बिरादरी की तामीर को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे की सलामती के निज़ाम और तरक्याती मफादात की कोशिशों की हिमायत करनी चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करनी चाहिए। यूक्रेन ने रूस से मजीद इलाके वागुजार कराने का दावा किया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि शिमाल मशरक में एक बड़ा इलाका दोबारा हासिल कर लिया है और आज़ाद कराए गए इन इलाकों में जंगी जराइम के इर्तिकाब का शुबा है। वापस लिए गए इलाकों में अकूबत खाने मिले हैं जहां रूसी फौज की जानिब से मुकामी शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। हुकाम के मुताबिक इज़्यूम के इलाके में इज्तमाई खबरें दरियाफ्त हुई हैं। ये शहर हाल ही में रूसी अफवाज से बाजियाब कराया गया है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इज्तमाई खबरों के बारे में मज़ीद मुस्तनद मालूमात आलमी बिरादरी को फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि हकीकत में हो क्या रहा है। रूस को इन इक़दामात पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दूसरी जानिब रूस ने मुतालबा किया है कि यूरोपीय मुल्क यूक्रेन से बरामद किया गया अनाज गरीब मुल्कों को भेजे जाने का सबूत पेश करें। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर झड़पों में 24 अफराद हलाक हो गए हैं। किर्गिस्तान का कहना है कि जंगबंदी के समझौते के बावजूद ताजिकिस्तान के साथ इसकी मुतनाज़ा सरहद पर शदीद झड़पें हुई हैं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर जंग शुरू करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन झड़पों में 24 अफराद हलाक और 87 जख्मी हुए, जबकि बड़े पैमाने पर इलाके से आबादी का इनखला किया गया। लड़ाई में टैंक्स और तोपखाने ने भी हिस्सा लिया। नाज़रीन, दुनिया भर में होने वाली मौसमी तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक ग़िज़ाई किल्लत सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। माहौलियाती तब्दीलियों में इनका अमल दखल सबसे कम है, लेकिन इन ममालिक में अवाम को शदीद कहत साली का सामना है। गैर सरकारी बरतानवी तंजीम ऑक्सफेम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद भूख का सामना करने वाले अफराद की तादाद 2 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान, बर्किना फासो, जबूती, ग्वाटेमाला, हैटी, कीनिया, मडगास्कर, नाइजर, सोमालिया और जिम्बाब्वे में गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान ग़िज़ाई बहरान के तनासुब में 123% तक इजाफा हुआ है। आनजहानी मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। वेस्टमिंस्टर हॉल में मलिका के ताबूत के आखिरी दीदार के लिए शहरियों की लंबी कतार मौजूद है, जो 6 किलोमीटर तक फैली है। किंग चार्ल्स और मलिका कैमला ने वेल्स के लिंडाफ कैथेड्रल में होने वाली दुआया तकरीब में शिरकत की। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात से कबल रॉयल नेवी के एहलकारों की रिहर्सल जारी है। आखिरी रसूमात की तकरीब में रॉयल नेवी के एहलकार मलिका के ताबूत के साथ लंदन की सड़कों पर 2 मील तक गश्त करेंगे। आनजहानी मलिका एलिज़ाबेथ की तदफीन पीर को लंदन में होगी। विंसर किले में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अहम कौमी खबरों से आपको आगाह करें। मुल्क भर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और करबला के शहदा का चहलम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है।
पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहातों में अलम और ताज़ियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। रावलपिंडी में शहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात को कदीमी इमाम बारगाह रावलपिंडी में इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में चहलम का मरकजी जुलूस अंदरून दिल्ली दरवाज़ा की हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ, जिसमें दीगर छोटे जुलूस भी शामिल होंगे। जुलूस रात गए करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहलम मुल्क भर की तरह कराची में भी इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मरकजी जुलूस दिन 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा और अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ खारादार पर वाक़ कदीमी इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में अरबईन का मरकजी जुलूस निचारी इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ रात को इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस, FC और लेविस के 5,500 अहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जुलूस की खुफिया कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। कोयटा में चहलम के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 10 बजे तक मुअत्तल रहेगी। वफाकी हुकूमत ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के लिए पाक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबों के लिए पाक फ़ौज की खिदमात की मंजूरी दी। सिक्योरिटी सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके पर पाक फ़ौज सिविल हुकूमत की मदद के लिए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक फ़ौज के जवान पहले ही सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों पर मामूर हैं। पाक फ़ौज सैलाब ड्यूटी के साथ साथ चहलम की सिक्योरिटी के लिए भी खिदमत अंजाम देगी। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात, उर्स के मौके पर ज़ायरीन अपने अपने अंदाज में अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर कौमी महफिल हुस्न क़िरात, महफिल समा और रूहानी इज्तिमात का इनेकाद किया गया है। उर्स तकरीबात में मुल्क के तूलो अर्ज़ से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। दरबार पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात और सिक्योरिटी मामलात को मॉनिटर करने के लिए 133 कैमरों की मदद से भरपूर निगरानी की जा रही है, जबकि दरबार की हिफाजत के लिए 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मारूफ गुलकारा नैयरा नूर की याद में लाहौर में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का मकसद उनकी मौसीकी के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना था। तफसीर बताएंगी बरदा सलीम। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। दुनिया मौसीकी में गुलकारा नैयरा नूर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मधुर आवाज़, खूबसूरत अंदाज, सुर और लय की ऐसी पुख्तगी कि बुलबुले पाकिस्तान का खिताब पाया। नैयरा नूर ने मौसीकी की रस्मी तालीम तो न हासिल की, ताहम उन्हें दरियाफ्त करने का सेहरा प्रोफेसर इसार के सर है। नैयरा नूर ने 1971 में PTV से सिलसिलावार प्रोग्रामों के गीत गाए और मुनफरिद पहचान बनाई। बाद में नैयरा ने मिर्जा गालिब, नासिर काज़मी, इब्ने इंशा और फैज़ का कलाम गाया और शोहरत के बाम में रूज तक जा पहुंची। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम नैयरा नूर की इजाद में तकरीब का मकसद उनकी मौसीकी के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश करना था। इस मौके पर नैयरा नूर के गायक गीत भी पेश किए गए। मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की और नैयरा नूर की फ़नी खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में सराहा। नैयरा नूर की खूबसूरत आवाज़ ही उनकी मुनफरिद पहचान थी, जो शायकीन मौसीकी के कानों में हमेशा रस घोलती रहेगी। बरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ है। सिब्बी 42, रोहड़ी, बहावल नगर और सक्खर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया,
چند اہم شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 34، لاہور 35، کراچی 32، پشاور 36، کوئٹہ 32 اور گلگت میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔